جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو نیکی کا ہمارے سیگمنٹ اور ادارے سے متعلق آپ نے دیکھا کیا زبردست کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اقرار بھی اگر آپ باقاعدہ تعارف کروا سکیں. جی ہاں بالکل. بہت ہی اب تک کی جتنی بھی آرگنائزیشنز جتنے بھی پلیٹ فارمز جن کو ہم نے یہاں متعارف کروایا نیکی کے سیگمنٹ میں ان سے بالکل مختلف کام ہے. مجھے خود بہت اچھا لگ رہا ہے اس کے بارے میں جان کر اور ظاہر مزید آج ہم جانیں گے. ٹیچ دا ورلڈ فاؤنڈیشن یہ بہت ہی منفرد طریقے سے ٹیبلٹس کے ذریعے اسمارٹ فونز کے ذریعے ان بچوں کو تعلیم کی سیکھنے کی سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ادارہ کہ جو اسکول سے باہر ہیں اور دور دراز کے علاقوں میں. تو یہ کیسے ممکن ہو پا رہا ہے اور اس سے الٹیمیٹلی کیا لرننگ ہو رہی ہے بچوں کی کہ وہ کہیں بھی کسی بھی وقت کسی بھی طرح سے سیکھنے کا عمل جاری رکھیں ایک بہت ہی کھیلنے کودنے کے انداز میں. 25,000 بچے مستفید ہو رہے ہیں اس انیشیٹو سے. ہمارے ساتھ زینب عابدین ہے, آپ ہیڈ آف مارکیٹنگ اینڈ فنڈ ریزنگ ہے TTWF کی. سعدیہ فیصل صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, آپ مینیجر ٹریننگ اینڈ امپلیمنٹیشن ہیں. اور رافیہ ہیں ہمارے ساتھ جن کے ہاتھ میں بڑا خوبصورت سا ٹیبلٹ دیکھ رہے ہیں اور ان کی والدہ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو زینب ذرا بتائیے کہ ظاہر ہمارے لیے بھی بڑا نیا ہے اس ادارے کے بارے میں جاننا, تو کیسے کام کر رہا ہے اور یہ جو بچے آؤٹ آف اسکول ہیں ان کو تو ظاہر بنیادی سہولت ہی نہیں مل رہی اسکول جانے کی, تو ان کے لیے ٹیبلٹس کا اسمارٹ فونس کا سوچنا اور اس طرح سے ان کی لرننگ کو یقینی بنانا, یہ کیا ماڈل ہے؟ السلام علیکم. آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو ہمیں دعوت دینے کا ہے. اٹس این آنر اینڈ اے پلیجر. آپ کا پلیٹ فارم از ماشاء اللہ ونڈرفل اینڈ وی سو بلیسڈ. یہ کہانی ایکچولی شروع ہوتی ہے اگر ہم تھوڑا سا زوم آؤٹ کریں اور دیکھیں کہ دنیا بھر میں ہمیں لگتا ہے تعلیم کا بحران صرف ہمارے ملک میں ہے, یہ دنیا بھر میں ہے اور زیادہ تر اوبیسلی ڈیولپنگ ممالک میں. لیکن اگر آپ دیکھیں 2 بلین آؤٹ آف 8 بلین ہماری جو پوری دنیا کی آبادی ہے وہ فنکشنلی الٹریٹ ہے. مطلب اس کو لکھنا پڑھنا, اور اس میں بڑے بھی شامل ہیں بچے بھی. اب اس میں سے اگر میں تھوڑا سا مختصر آؤں کہ 200 ملین پلس بچے اسکول نہیں جاتے اور یہ زیادہ تر ہمارے ڈیولپنگ کنٹریز میں ہیں, اور پاکستان بدقسمتی سے نمبر 1 ہے, اسٹینڈز آن دا ٹاپ. تو اس درد اور اس احساس کو رکھتے ہوئے اور ساتھ میں اپنی ایکسپرٹیز ان ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن, انٹرپرینورشپ, ٹیکنالوجی اور گیمیفیکیشن کو ساتھ جوڑتے ہوئے ہمارے جو 2 بانی ہیں شفیق خان صاحب اور عمران سعید, یہ لوگ 2 پاکستانی ایکسپیٹریٹس ہیں جو امریکہ میں انہوں نے بہت امیزنگ اپنے کریئرز سارٹ آف گزارے, لیکن اس کے بعد ان کا ہمیشہ پاکستان سے ایک لگاؤ تھا اور ان کو یہ موقع ملا یہ ادارہ قائم کرنے کا 10 سال پہلے. اور ماشاء اللہ سے جیسے آپ نے بتایا اقرار بھائی نے کہ 25,000 بچوں کو آلریڈی سرو کر چکے ہیں, اور آگے یہی ہے کہ یہ جو 26 ملین ہے, یہ اگر یہ 26 ملین یہ ابھی پچھلے 20 سال میں 12 ملین ہم نے ایڈ کیا ہے, اگلے 10 سال میں یہ مزید ڈبل ہونے والا ہے. اور اب یہ ٹریڈیشنل سسٹم سے اس کو سالو کرنا, برک اینڈ مورٹر, کتنے ٹیچرز ٹرین کریں گے اگر ہم آج بھی شروع کریں, بلڈنگز بنائیں گے, نہ ہمارے پاس وسائل, نہ ہمارے پاس ٹائم. سب سے بڑی چیز ہے کہ ٹائم ہمارا سب سے قیمتی جا رہا ہے, اور ایک پوری نیشن, اس کے پورے بچے کہاں جا رہے ہیں. تو یہ ایک سارٹ آف ہمارا وہ ہے, اور جو ہمارا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ذریعے ایسے ماڈلز آف لٹریسی لائیں اور ان بچوں تک, ان کی کمیونٹیز تک. یہ جو مائکرو اسکولز ہیں وہاں پہ آپ ایسے بچے جو آؤٹ آف اسکول ہیں ان کو اسمارٹ فونز اور ٹیبلٹس دے رہے ہیں؟ بالکل. ہمارا جو فلیگ شپ پروگرام ہے اس کو کہتے ہیں ڈیجیٹل مائکرو اسکول ہیں, جو آپ کی اسکرین میں آپ کو نظر بھی آ رہا ہے, جس کا بھی آپ کو رافیہ بتائیں گی بھی, اور ہماری ٹیم کے کس طریقے سے یہ بچے, یہ ایک روم کا اسکول ہوتا ہے, اس کے اندر 25 بچے ہمارے شامل ہوتے ہیں ایک شفٹ میں. 100 بچوں کا یہ اسکول ہے, کمیونٹی سے ہی ہم ان کو ہائر کرتے ہیں, ساری ٹیم کو, پوری فورس. ابھی آپ کو بتائیں گی سعدیہ ہاؤ دس ورکس. تو سعدیہ اگین بہت ہی دلچسپ, بہت انٹرسٹنگ, اور ظاہر ہم سب لوگ جاننا چاہ رہے ہوں گے جو اس وقت گھر میں بیٹھے ٹیلی ویژن اسکرینس پر دیکھ رہے ہیں, تو ذرا ہمیں بتائیے کہ کیسے سرو کر رہا ہے یہ انیشیٹو اس ایک بچے کو جو اسکول بھی نہیں جا پا رہا تھا. اچھا, میں بہت آسان اور عام انسان کے لفظوں میں اس کو بتانا شروع کرتی ہوں. ہمارا ادارہ کیا کرتا ہے, ہم شہری دیہی علاقوں میں جاتے ہیں, اربن سلم ایریاز میں, جہاں پہ آؤٹ آف اسکول بچوں کی تعداد عموماً زیادہ ہوتی ہے. تو وہاں پہ ہم جاتے ہیں اور وہاں سب سے پہلے ہم سروے کرتے ہیں.
सर्वे करके एक नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल बच्चों का हम आइडेंटिफाई करते हैं। वो आइडेंटिफाइड है कि ये इतने बच्चे होंगे तो यहाँ हम अपना स्कूल खोल देंगे। उसी इलाके में, उसी मोहल्ले के अंदर वहाँ पे हम एक कमरा देखते हैं, वो किराए पे लेते हैं। वो कमरा ऐसा होना चाहिए जहाँ 25 बच्चे हमारे एक साथ बैठ सकें, और 4 शिफ्टों में फिर ये स्कूल चल रहा होता है, सुबह 8 बजे से 5 बजे तक। ऐसा हम इसलिए करना पड़ता है हमको क्योंकि ये जो बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो आज राफिया मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, ये बच्चे अपने घर के बच्चे नहीं होते, ये बड़े होते हैं। इनको माशी ज़िम्मेदारियों में हाथ बटाना पड़ता है अपने माँ बाप का। तो ये जो एक ट्रेडिशनल टाइम है 9 से 1 बजे का, ये उस वक्त तो पढ़ नहीं सकते। काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं, जी बिल्कुल। तो इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए हमारे पास 4 शिफ्ट्स हैं, ताकि ये बच्चे अपने माशी ज़िम्मेदारी भी पूरी करते रहें और अपनी तालीम भी साथ साथ जारी रख सकें। पहली जमात से लेकर 5वीं जमात तक की तमाम जितनी भी आपका करिकुलम है, कोर्स है, वो ऐप की शक्ल में हमारे टैबलेट में मौजूद होता है। बच्चा वहाँ आता है और हम ये कहते हैं कि अगर एक औसत उम्र का बच्चा और जो एक औसत सीखने की सलाहियत रखता है, वो 18 महीने में ये कोर्स पूरा कंप्लीट कर लेता है। लेकिन यहाँ पे कोई प्रेशराइज नहीं होता, क्योंकि मल्टी ग्रेड क्लासरूम है और मल्टी एज क्लासरूम है। यहाँ पर आपको 7 साल का बच्चा भी मिलेगा, 10 साल का बच्चा भी मिलेगा, 12 साल का बच्चा भी मिलेगा। तो कोई बर्डनाइज नहीं करते। इस स्कूल की खूबसूरती ये है कि किसी बच्चे के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि इस साल बस पास होना है तुमने। वो अपनी रफ्तार से सीख रहा है, ये बहुत एक खूबसूरत बात है। दूसरी खूबसूरत बात यहाँ पर यह है, कोई यूनिफॉर्म नहीं है, कोई कॉपी किताब का बोझ नहीं है। स्कूल कम्युनिटी में है, पैदल बच्चा स्कूल आ सकता है। और सबसे अच्छी बात ये कि जो वहाँ पे मोहल्ले में जो उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं टैबलेट के ऊपर, वो उन्हीं के मोहल्ले की बाजियाँ होती हैं, किसी के घर की बेटी होती है, किसी की खाला होती है, किसी की फूफो होती है। ट्रेन किया जाता है इस काम उनको मैं ही ट्रेन करती हूँ। चूँकि मैं मैनेजर ट्रेनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन हूँ, तो हमारा पूरा एक डिपार्टमेंट है। बच्चे आते हैं, उनके लिए वो लैपटॉप्स या स्मार्टफोन्स या टैबलेट्स मौजूद होते हैं, वो अपना सीखते हैं, खेलते कूदते हैं, जितना वो लर्न करते हैं। उसके बाद फिर अल्टीमेटली वो टैबलेट्स उसी कमरे में, उसी स्कूल में अगली शिफ्ट के लिए छोड़ के चले जाते हैं। जी बिल्कुल। ओके, बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसमें ना थोड़ा सा हमारा ये है कि हम कोर लिटरेसी पे काम कर रहे हैं। बुनियादी इल्म 3 आपके मेन, इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स के 4 फंक्शंस, ये चीज़ें आपको आ जाएं, आप बहुत कुछ इससे कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हम पूरी तालीम दें, हम तालीम का दरवाज़ा खोल रहे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। हम ज़रा बात करते हैं राफिया से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। राफिया माशाल्लाह जी 13 साल की हैं और ये बलूचिस्तान से, इनकी फैमिली ज़ाहिर है रोज़गार के सिलसिले में कराची में है और ये स्कूल नहीं जा पा रही थी। क्या करती हैं आप? मैं स्कूल पढ़ती हूँ और घर का काम, वैसे जैसे बाहर का काम अम्मी के साथ हाथ बटाती हूँ। अम्मी के साथ हाथ बटाती हैं। और बाहर का काम क्या मतलब? जैसे कि बंगलों में जाते हैं काम अच्छा, करने। बंगलों में जब जाते हैं साथ, तो फिर आप साथ जाते हो काम करने के, और फिर वापस आके कितने बजे स्कूल जाती हैं आप? मैं सुबह 7 बजे जाती हूँ, 10 बजे वापस आ जाती हूँ। ओके, और फिर सारा दिन आप अम्मी के साथ काम करती हैं? अच्छा भाई, वाह वाह। तो अब तक और क्या? राफिया के 3 और बहन भाई हैं जो हमारे स्कूलों में। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अभी तक क्या सीखा राफिया आपने? बहुत कुछ, जैसे कि टैबलेट पे लिखना, पढ़ना, और जैसे ब्लैक बोर्ड पे लिखना चौक से, ये मतलब सब कुछ सीख गई। मैं जब आया हूँ, आप वहाँ बैठी हुई थी जहाँ पे, वहाँ भी आप इसके साथ लगी हुई थी ना? तो इस पे खेलते ज़्यादा हैं या सीखते ज़्यादा हैं? सीखते भी ज़्यादा है। सीखते भी ज़्यादा है, मतलब खेलते भी हैं। तो खेल खेल में सीखने का। और इस मॉडल की खूबसूरती यही है कि आप सीखें इससे थ्रू गेम। राइट। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से ठीक है, हैं? शुक्र। कैसा लग रहा है? माशाल्लाह आपकी बच्ची पढ़ रही है, सीख रही है, लिखना जान गई है। जी माशाल्लाह से सही पढ़ रहे हैं आप बच्चियां मेरे, और ये मेरे साथ काम पर भी आती है। घर का काम है, यानी कि माँ बेटी हम लोग एक साथ घर जाते हैं आप संभालते लोग? हैं। ओके। जी, घर संभालते तो हैं। अगर ये ना होता स्कूल, ये जो तो आप क्या इसको पढ़ा सकती थी या पढ़ाने का इरादा नहीं। था आपका? नहीं ना, करीब में स्कूल नहीं थे ना, तो ये स्कूल खुला तो बच्चों को मैंने डाला। फिर मैंने बोला चलो अच्छा। बच्चियाँ यहाँ पढ़ रही। अभी आपको क्या फ़र्क महसूस होता है जब ये स्कूल नहीं जाती थी और अब जब स्कूल जाती है, तो इसने क्या क्या कुछ सीखा है? क्या तब्दीली आई है इसमें? माशाल्लाह से काफ़ी तब्दीली आई है इसमें, कि पढ़ भी है, लिख रही है, हर चीज़ इसको अभी और आपको अच्छा लगता है? जी। जाहिर है, ये बड़ी अच्छी बात है जी, माशाल्लाह। राफिया,
जिंदाबाद, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। हाँ माशाल्लाह, थैंक यू। जीती रहो, खुश रहो। क्या यहाँ बात पे आके कैसा लगा है? अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा सेट लगा। ठीक है हमारा, सही है, अच्छा बना हुआ है। काफी जब आई तो बड़ी एक्साइटेड थी, बड़ी अच्छी। काफिया ने बहुत तस्वीरें ली और अपना आप अपना टैबलेट से थोड़ा सा दिखाना चाहोगी? हाँ प्लीज, हाँ प्लीज। अच्छा अच्छा जी, अच्छा तो ये क्या है? मैं आऊँ यहाँ पे? मैं आता हूँ। अच्छा तो क्या है दिखाएं ज़रा मुझे, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ मैं। अच्छा मैं माइक पकड़ लेता हूँ। इसी बहाने वसीम भाई आप भी कुछ सीख लेंगे। मैं बहुत भाई फारिग हूँ इन मामलों में। ये एक किताब है, ओके, इसमें आपकी तस्वीर को दबा के हाँ हाँ, तो ना इसमें हम लोग उर्दू पढ़ सकते हैं। दबाएं कोई भी तस्वीर। ओके, ये देखो। अच्छा, अरे वाह वाह, ये पढ़ सकती है? क्या लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो? जी। हाँ कैमरा को दिखा ओके, हाँ लेट्स सी। हिरन का बच्चा दौड़ रहा था। वाह 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 वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा, और ये है खरगोश से भी आगे। खरगोश से आगे। मैं ज़रा एक मिनट जरा, ताकि अपने आप क्या कैमरा पकड़ो ताकि हम जरा ये देखें ना, ताकि व्यूअर्स को भी समझ में आए ना। ये है हाथी से भी आगे है, हाथी से भी आगे। और ये क्या लिखा हुआ है? ये है खंडर पार कर गया। वो नहीं, ये क्या है? वो नहर, हाँ यहाँ से देखो, नहर कूद गया। हाँ हाँ, ये कहानी है क्या? हाँ जी हाँ जी, वो एक एक जो है ना वो इमेज है और फिर उसकी वो है तस्वीर है। ये मैं पढ़ रहा हूँ, आप बताओ कि मैं गलती तो नहीं कर रहा भाई। मैदान में पत्थर पड़ा था, ठोकर लगी तो गिर पड़ा। सही पढ़ा है मैंने? जी, ये देखिए मैं बिल्कुल सीख गया हूँ। तो मेरे लिए तालियां तो बजवाए ना जरा, आप देखें मैंने कितना ठीक पढ़ा। क्लैपिंग प्लीज। क्लैपिंग प्लीज, क्लैपिंग प्लीज। हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू, क्या बात है भाई, जबरदस्त, बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत सारी तालियां इनके लिए बजाएं भाई, क्या बात है, जबरदस्त। और जाहिर है वसीम भाई, थैंक यू। हाँ यू वेलकम, यू वेलकम। ये कितने ऐसे और बच्चे हैं माशाल्लाह जिनकी ज़िंदगी में ये खूबसूरत और मुस्बत तब्दीली आई। आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी इकरार भाई, मैं यहाँ पे इम्पैक्ट पे बात करना चाह रही हूँ। चूँकि हम कहते हैं कि हम 200 कम्युनिटीज़ में ऐसे जा चुके हैं, 200 ऐसे महल्ले हैं जहाँ पे इस जैसी कई राफियाँ 200 स्कूल्स हैं एक कमरे के जो काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। सबसे खूबसूरत बात, हमारे किसी स्कूल का नाम हमारे नाम पे नहीं है। ओके, हम कहते हैं डिजिटल माइक्रो स्कूल खासखेली गोट, डिजिटल माइक्रो स्कूल गाजी गोट, डिजिटल माइक्रो स्कूल गाजी जी ब्लॉक, उसी कम्युनिटी का स्कूल है, जबरदस्त, उन्हीं का स्कूल है, उन्हीं के मोहल्ले का स्कूल है। और ये इम्पैक्ट इतना खूबसूरत होता है, जब स्कूल का पहला दिन होता है ये बच्चे बड़े खुशी खुशी, चूँकि आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं, कभी इनको किसी ने बताया नहीं कि स्कूल जाते कैसे हैं, स्कूल दिखता कैसा है, तो ये जैसे होते हैं वैसे आते हैं अपनी एक्साइटमेंट में। और जब ये स्कूल में एक और हफ्ता आते ही उनको टैबलेट और उसके ऊपर ग्राफिक्स और कलरफुल कहानियाँ और लफ्ज़, हम जिस ज़माने में अब जदीद टेक्नोलॉजी वी आर जी, और एक हफ्ते बाद ही ये बच्चे हो आपको जाते हैं उससे। बिल्कुल किसी भी आप नंबर 1 कराची का स्कूल उठाइए और हमारे क्लासरूम उठाइए, आपको कहीं कोई फ़र्क महसूस नहीं होगा। ये इतना अच्छा बेहतरीन इम्पैक्ट होता है। उसके साथ साथ हम ये सोच लेके जाते हैं कि सिर्फ इन बच्चों की ज़िंदगी नहीं, वहाँ रहने वाले तमाम लोगों की ज़िंदगी। भाई बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव है टीच द वर्ल्ड फाउंडेशन, और बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया ये जान के और ये सीख के कि कैसे बच्चों की तालीम के लिए एक बिल्कुल मुनफरद अंदाज अपनाया गया पाकिस्तान की हद तक, ज़ाहिर है। और ऐसे बच्चे के जो स्कूल भी नहीं जा पा रहे थे, अब वो बच्चे अगर इस तरह से टैबलेट्स पर और स्मार्टफोन्स पर सीख रहे हैं और ज़ाहिर है दिलचस्पी है उनकी, एंड आई एम श्योर कि बहुत ही कम ड्रॉप आउट, कोई बच्चा भी ऐसा नहीं होता होगा जो स्कूल नहीं आता इब्तदाई कुछ दिन आने के बाद। कुछ चैलेंजेस हमें शुरू में पेश आते हैं, जिसके लिए हम अपने कम्युनिटी ऑफिसर्स हैं उनकी खिदमात लेते हैं, चूँकि वो कम्युनिटी की होती बच्चे है। का बच्चे का इंटरेस्ट लूज नहीं होता होगा, बिल्कुल अलग बात है कि उसके मौशी मसाइल या घर के फैक्टर्स प्रॉब्लम होते हैं। बच्चे का हर शिफ्ट शुरू होने से पहले बच्चे इंतजार में खड़े होते हैं। वही। जिनकी शिफ्ट खत्म हो रही होती है उनको भेजना एक इम्तिहान होता है कि शिफ्ट खत्म हो गई है, अब आप चले जाइए। और जो आने वाले होते हैं उनको इंतजार करवाना हमें खुद बहुत बुरा लग रहा होता है कभी कभी। जिंदाबाद जिंदाबाद। और अच्छे, और ये जो सारी जो मेहनत है, ये जो इनके चेहरे पे जो खुशी है ना और स्माइल है ना, ये जो एतमाद है, इससे आपको लगता है सारी मेहनत वसूल हो गई ना। सो वो एक्चुअली वेट कर रही हैं कि वो आपके साथ कभी टाइम स्पेंड करें, तो मैंने कहा आप दावत दें वसीम भाई को और इकरार भाई को कि हम आएंगे आपके आएं इंशाल्लाह। चाय पिलाओगे अच्छी से, फिर आएंगे हम, पक्की मैं बात आप सब कुछ खिलाऊंगी, आप भी साथ हैं। बस एक कप चाय मिल जाए तो बस हमारा काम हो जाएगा। मिल जाएगी चाय, लेकिन चाय आपको खुद बनानी पड़ेगी, ये कोई किसी और के हाथ की नहीं पियेंगे।
पक्की मुझे बात आती है। बस नहीं बनाना आती तो सीखना शुरू कर दो बस, ठीक है? नहीं नहीं मुझे आती है। आती बट ठीक है, चलो डन हो गया। अच्छा आते आएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, और अल्लाह ताला कामयाब करे इंशाल्लाह। बहुत सारी तालियां इनकी हौसला अफजाई के लिए, ज़बरदस्त, क्या बात है। और जाते जाते ये भी कि इजी पैसा जो डिजिटल बैंक है उसके ज़रिए चलो तालियां चलो बाद में बजा दीजिएगा। इजी पैसा डिजिटल बैंक के ज़रिए आप अपनी ज़कात या डोनेशन शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। हर डोनेशन पर इजी पैसा अपनी तरफ से 5% इजाफी रकम 5% कंट्रीब्यूट करेगा। जी हाँ, इस रमज़ान अपनी ज़कात से आप किसी भी ज़िंदगी की इस अंदाज से उम्मीद जगा सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं और फिर हम उलमा कराम के सेगमेंट के साथ हाज़िर होते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह जज़ाक थैंक यू भाई बाप।